ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਆ ਕੀਟੋਨ ਬੋਡੀ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕ੍ਰਿਟਿਨਾਈਨ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, GFR ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਵਰ ਟੈਸਟ ਉਹ ਵੀ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਸਲ ਮਾਸ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਖ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਐਕਟਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਦਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਝਮੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਮਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੀਡਰ ਆ ਇਹ ਬਚ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮਿਹਰ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਈ ਅਮਨੂ ਪਹਾੜ ਜੀ एक मिनट गल रखते फिर सवाल कर लो। परले बने इधर बना आ जाओ, कोई बात हो जाएगा, नहीं तो उधर आ जाओ। आप माइक रखा है यहाँ पर। हाँ जी, आप सवाल ही आप कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार का दोबारा समय पंजाब सरकार को मिला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है कि वो कुछ कथित किसान जो है वो गैर जिम्मेदाराना बयान जो है यहाँ से दे रहे हैं। देखो, मुझे लगता है कि अभी जो आज की कार्रवाई हुई है उसको अभी स्टडी करना, उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से भी उस पर डिस्कशन करके उसके बाद ही हम कोई बात कह पाएंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल है कोई बयान देने का, तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने और अन्य साथियों ने डल्लेवाल साहब की भावना को ही बयां किया है, और हमेशा संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान सत्कार किया गया है, और पूरा देश मुझे लगता है सारी चीजें देख रहा है। देश ने ये भी देखा कि जब सीनियर अधिकारी हमारे पास शाम के समय आए एक दिन, और उन्होंने कहा कि आप जो बातें हमारे सामने कह रहे हैं आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात कहिए, तो दोनों फोरमों ने उस पर सहमति दी, और डल्लेवाल साहब अगले दिन 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से जुड़ने को तैयार भी हो गए। 1 बजे के आसपास वो अचानक से बेहोश होकर गिर गए। 12 से 15 मिनट वो बेहोश रहे। डॉक्टर अवतार जी, इनकी टीम भी और सरकारी डॉक्टरों की टीम भी वहीं मौजूद थी स्टेज के पास। तो इन्होंने देखा कि उनकी हालत किस तरीके की थी। उसके बावजूद जब उन्होंने लगभग 1:30 पौने 2 के बीच में उनको होश आया, तो सबसे पहले उनका सवाल यही था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने की तैयारियां कैसी चल रही हैं। तो डॉक्टर साहब ने भी खुद भी कहा कि आपकी तबीयत, आपकी हालत ऐसी नहीं है कि आप जुड़ पाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को हम सम्मान करते हैं हम, और सम्मान के तौर पे हम जुड़ेंगे। वो स्टेज के नीचे जहां गिर गए थे वहीं पे लेटे हुए थे, 2-3 कंबल ऊपर उनके डाल रखे थे, उन्होंने पूरे अपने कपड़े भी नहीं पहने थे, लेकिन ऊपर तक कंबल तक कवर करके गर्दन तक वो उसके बावजूद 12 से 15 मिनट तक ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। अगर दोनों मोर्चों को, और अगर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को, अगर इनके मन में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अगर सम्मान नहीं होता, तो शायद वे उस दिन ना जुड़ते। तो लगातार जो भी हम यहाँ पे बात रख रहे हैं पूरे प्रॉपर तरीके से, सत्कार के साथ, बड़े ही सम्मान के साथ, और एक अपने
संविधान के दायरे में रह के अपनी बातें रखी जा रही हैं और उसी तरीके से अपनी बात हम प्रॉपर रख रहे हैं लगातार। हमने तो सिर्फ इतना ही कहा है बार बार कि माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है, माननीय सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को भी ये दिशा निर्देश दे कि भाई जो संसद की कमेटी की रिपोर्ट है और माननीय सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की जो इंटरिम रिपोर्ट है, जिन दोनों रिपोर्टों में एमएसपी गारंटी कानून को बनाने की बात कही गई है, कृपा करके उनको भी केंद्र सरकार लागू करे। संसद से ऊपर तो हो नहीं गई केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार को भी ऐसे डायरेक्शन दिए जाए। यही बात अब तक बड़ी सत्कार और सम्मान के साथ कही गई है। और एक कोई सवाल आपका और हो? वो कह रहे हैं कि जो गैर जिम्मेदाराना ध्यान दे रहे हैं, हमें उनकी मंशा पता है। देखिए, हम उन सारी चीजों पे अभी नहीं जाना चाहते। मैंने जैसा पहले कहा कि किस तरीके से क्या बयान दिया जा रहा है, क्या बयान नहीं दिया जा रहा है, क्या बात कही जा रही है, क्या फैक्ट्स रखे जा रहे हैं, किस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को चिट्ठी लिखी गई है, वो सारी बातें पब्लिक डोमेन में है। तो मंशा क्या है दोनों मोर्चों की या मंशा क्या नहीं है, वो पूरे देश के सामने मुझे लगता है क्लियर है। हमारी तो एक ही मंशा है कि चाहे संवैधानिक संस्थाएं हो, चाहे केंद्र सरकार हो, वो जो वादे हमसे पिछले लंबे समय से किए गए हैं, उन वायदों को पूरा करा दिया जाए। इसके अलावा हमारी और कोई मंशा नहीं है। अच्छा, अगर बात करी जाए तो ये धरना और कितना लंबा चलेगा? देखो, वो तो केंद्र सरकार के हाथ में है, हमारे तो हाथ में है नहीं कि धरना कितना लंबा चलेगा। केंद्र सरकार जब मांग पूरी कर देगी। जवाब नहीं मिलता है तो क्या होगा आगे का? आपको क्या लगता है? देखिए, अगर मैनिफेस्टेशन की जाए, इमेजिनेशन की जाए तो वो क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है कि सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का 38वां दिन है। एक इतने सीनियर लीडर ने अपनी जान दांव पे लगा दी है, उससे बड़ा कोई रणनीति या उससे बड़ा कोई फैसला हमें नहीं लगता कोई और हो सकता है। तो 4 जनवरी को सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल जी की भावना के अनुसार खनौरी किसान मोर्चे पे देश भर से लाखों किसानों की यहां पे गैदरिंग होगी, जिसमें सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल जी अपना जरूरी संदेश किसानों के नाम देंगे। सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल जी को यह महसूस भी होता है कि जिस तरीके से स्थितियां बनती जा रही हैं, जिस तरीके से सिचुएशन बनती जा रही है, किसी भी समय कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो इसीलिए 43-44 साल सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल जी ने जिस किसान समाज की सेवा करी है, उस सभी किसान समाज के, पूरे किसान समाज के वो दर्शन करना चाह रहे हैं। इसलिए हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग एमएसपी गारंटी कानून बनवाना चाहते हैं, जो लोग सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल जी से प्रेम करते हैं, उनसे स्नेह करते हैं, वो सारे साथी 4 तारीख को खनौरी किसान मोर्चे पर पहुंचे, क्योंकि 13 फरवरी से शंभू, खनौरी और रतनपुरा मोर्चों पे एमएसपी गारंटी कानून बनवाने की लड़ाई चल रही है। इसीलिए एमएसपी गारंटी कानून बनवाने के पक्ष में जो लोग खड़े हैं, सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल जी के समर्थन में जो लोग खड़े हैं, जो सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल जी से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, वो सभी आदमी 4 जनवरी को सुबह 10 बजे खनौरी किसान मोर्चे पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। ये बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, किसी साथी को कोई कंफ्यूजन ना हो पूरे देश में। सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल जी अपना जरूरी संदेश 4 जनवरी को खनौरी किसान मोर्चे से ही देंगे। सारा दिन प्रशासन के साथ मीटिंग हुई, अब पंजाब सरकार ने दोबारा समय मांगा है सुप्रीम कोर्ट से हेल्थ ट्रीटमेंट को लेके। वो कह रहे हैं कि हमें थोड़ा और समय दीजिए, हमारी बात करनी। तो हेल्थ ट्रीटमेंट करवाया जाएगा या जिस तरह से पिछली बार उन्होंने कहा था कि केंद्र बुलाए उसके बाद हेल्थ ट्रीटमेंट जो है वो लगाई जाएगी? देखिए, इस तरीके की कोई बात नहीं हुई कि ड्रिप लगाई जाएगी, ऐसी कोई भी बातचीत नहीं हुई। मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं, ड्रिप लगाने की किसी तरह की कोई चर्चा कहीं पे भी नहीं हुई। हमने कल भी निवेदन किया था कि कुछ जो पंजाब के बड़े सीनियर वरिष्ठ अधिकारी आए थे, उन्होंने कुछ बातें रखी थी, तो वो एक बार कंक्रीट फॉर्म में आ जाएं, उसके बाद दोनों फोरम हम अपना बिल्कुल ऑफिशियल स्टैंड क्लियर कर देंगे। एक डिस्कशन हुआ है, बातचीत हुई है, आंदोलन, ओवरऑल आंदोलन की स्थिति को लेके डल्लेवाल साहब की हेल्थ के बारे में भी उसमें चर्चा हुई है, हमारी मांगों पे भी उस पर चर्चा हुई है। हमें लगता है कि एक बार कुछ कंक्रीट बन जाए, उसी के बाद हमें कोई स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करना चाहिए। यही इसीलिए विनती है कि उस समय तक थोड़ा हम इंतजार करें। सोमवार तक कोई हेल्थ ट्रीटमेंट नहीं होगी जो पंजाब सरकार ने? देखिए, हमने ये बिल्कुल क्लियर आपको मैंने निवेदन किया
कि किसी भी तरीके की जो अभी तक की बात है, कोई ड्रिप या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की कोई बातचीत अभी नहीं है। कुछ बातें हमारे आंदोलन को लेके, ओवरऑल मांगों को लेके माननीय अधिकारी गण की तरफ से आई थी, उस पे वो एक बार कंक्रीट फॉर्म में आ जाएंगी तो उसके बाद हम अपना निर्णय उस पे लेंगे। उनकी सेहत के बारे में बात की जाए तो कुछ बदलाव नजर आ रहा है? देखिए, डॉक्टर साहब ने वो पूरी चीजें क्लियर कर दी हैं और कल वो पूरा दिन बोल भी नहीं पा रहे थे। पिछले 5-6 दिन से अगर थोड़ा ज्यादा पानी पी लेते हैं तो वो भी वोमिटिंग के तौर पे बाहर आ जाता है। तो उनकी स्थिति लगातार नाजुक होती जा रही है। अगर आप उनके शरीर को देखेंगे तो पहले जो उनका शरीर था उसका मात्र 35% ही रह गया है। तो उनका वजन भी लगातार घटता जा रहा है, उनका बीपी भी लगातार बहुत कम हो रहा है। पहले जो कम फ्रीक्वेंटली बीपी इतना डाउन जाता था, अब वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली डाउन जा रहा है, 75-76 के आसपास तक